Good morning, students. I am Sachin Tripathi, GPIC online class. Welcome to GPIC online class. Previous classes are the attends all students of the double displacement reaction. Okay, students. Now, today I discuss of types of the double displacement reaction. Now, first one reaction are the so of the double displacement reaction. Those reaction in which the two compounds react with exchange ion to form a new compounds called double displacement reaction. For example, barium chloride, barium chloride react with sodium sulfate, react with sodium sulfate are produced and ion exchange chlorine binds sodium chloride NaCl and barium are bind sulfate are called barium sulfate. Barium sulfate. Okay, students, this is double displacement reaction. Now, barium and sodium are ion exchange. Okay, so those reaction in which two compound react with exchange of ion and completely to form new compounds. This reaction is called double displacement reaction. Now today we discuss types of double displacement reaction. Number one, precipitation reaction. वाइट म्यूट कर लीजिए स्टूडेंट्स. Precipitation, precipitation reaction. And number two, neutralization reaction. Neutralization reaction. Neutralization reaction. Now first I discuss precipitation reaction, short form PPT reaction. Short form PPT reaction. Those reaction in which those reaction in which firstly of the precipitation reaction, those reaction in which aqueous solution have two components, aqueous solution, aqueous solution of two compounds are यूज कर दो जिसको प्रॉब्लम हो रही हो. Two compounds on mixing react to form insoluble compound to form insoluble compound. आप लोगों को म्यूट करना पड़ेगा. तो छोड़ दो, मत देखो. आप में नेटवर्क प्रॉब्लम होगी और क्या बताएं.
अभी दिख रहा है अब? चलिए मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। दोज रिएक्शन इन विच aqueous solution of two compounds and mixing react to form insoluble compound। पीडीएफ में मैं इसको दे दूंगा, आपको अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें आपको सॉल्युबल दो कंपाउंड्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, और मिल जाने के बाद इन सॉल्युबल कंपोनेंट्स बन जाएगा और पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट जिसे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट। Sodium chloride react with silver nitrate are also form silver chloride because the ion is changed. Ion are changed, so silver are react with chloride, silver chloride, and another components are formed. Sodium are composed by nitric acid are sodium nitrates. Sodium nitrate. This is the sodium chloride. This silver nitrate or ion is changed and further a new compound silver chloride and sodium nitrate. Silver chloride are also formed to produce PPT. This is called the precipitate. ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जिसमें प्रेसिपिटेट में कंपाउंड ऑलरेडी आपको जम जाएगा। जैसे ये बीकर ले लेंगे, इस बीकर में, ठीक है, इस बीकर में आप क्या करोगे, जैसे ही हम एक कंपोनेंट आप कहोगे NaCl, NaCl में जब हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देंगे, बहुत आवाज आ रही, सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दोगे तो दोनों कंपाउंड मिल जाएगा। मिल जाने के बाद एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट बन जाएगा और यहाँ पर पीपीटी फॉर्म कर देगा, ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ये जैसे ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा रिएक्शन रुक जाएगी। रिएक्शन रुक जाने के बाद दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हो जाते हैं। जैसे आपने दही में देखिए पानी अलग रहता है और कैसीन आपकी अलग हो जाती है। तो जैसे बन गया दही के एक सेपरेट हो गया, अब उसको हम डायरेक्ट मिल्क से फिर फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। जैसे मिल्क में जैसे हम सिट्रिक एसिड कंपोनेंट्स डालते हैं, वो किसमें दही में चेंज हो जाता है और वाटर को अलग कर देता है, तो वो प्रेसिपिटेट बना देता है। फिर हम मिल्क नहीं बना सकते दही से। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं, फेरिक क्लोराइड react with sodium hydroxide, also produced ferric hydroxide ion exchange are positive or negative, ferric hydroxide and sodium chloride, sodium chlorides are the precipitate form। ऐसा रिएक्शन जो दो कंपाउंड आपस में आयन एक्सचेंज करने के बाद नया कंपाउंड बनाते हैं और नया कंपाउंड बनाने के बाद वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग की तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए, अच्छे समझ लीजिए, ऑनलाइन क्लास है ये। आप घर में अगर आवाज हो रही तो आप अपना म्यूट हो जाइए, तो बाहर हो जाए कभी आप। इसमें सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, सबके पास आवाज। दोनों रिएक्शन देख लीजिए आप।
प्रेसिपिटेट समझ गए होंगे आप। दो कंपाउंड्स को मिलाने के बाद दोनों कंपाउंड इनसॉल्युबल कंडीशन में आने के बाद एक अलग से प्रेसिपिटेट बना देता है, व्हाइट कलर का सिंबलाइजेशन बन जाता है। मैं प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको, व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, पीपीटी जिसको हम बोलते हैं, और एक कंपाउंड अलग हो जाता है। इस प्रकार का रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट में टू टाइप्स है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ओनली वन साइड रिएक्शन होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद रिएक्शन रुक जाती है। अभी आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। नंबर सेकंड रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Neutralization reaction which with acid and base, when the acid and base react form a new product, salt and water. When acid and base are react to give salt and water, this reaction are called neutralization reaction. ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएगी। इट्स मीन दैट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, because the double displacement reaction also part of the neutralization reaction. When acid or base react with only give the salt and water. For example, the simple example of the when acid react one HCl hydrochloric acid react with any base like sodium hydroxide. Sodium hydroxide react with the hydrogen fluid. This is the acid, this is base, because the tendency of the losses of the hydrogen, and this is tendency of the losses of the hydroxyl group. So it is called the base and this is called the acid. Now react at the double displacement or the ion exchange reaction. So ion exchange are the chloride react with the change the positive charge. This reactants are the negative charge to binds of the positive charge, and this negative charge are the binds of the positive charge. So it is NaCl. Now product is the salt form NaCl. Sodium chloride is the salt, and next H and OH are also produced H2O. Now this reaction is called the neutralization reaction. These reactions are reversible symbol because the reaction forward and backward. Okay students, precipitation form only one side reaction. रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, उसके बाद प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। जैसे मिल्क को आप कन्वर्ट कर देते हैं दही में या घी में, तो वो एक बार प्रेसिपिटेट बना देता है, उसके बाद वो फिर मिल्क में नहीं बन सकता। इसी तरह जब न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है वो एसिड बेस से मिलने के बाद सॉल्ट फॉर्म कर देता है, सॉल्ट के बाद वाटर, और फिर इसमें अगर केमिकली चेंज कर दिया जाए तो ये रिएक्टेंट में चेंज हो सकता है। Okay, now another example is the best example for the acetic acid. Acetic acid and react with ethyl alcohol like base, because the hydroxyl group present in. When the acid react with base and ion exchange CH3 and change of the COH, tendency of the hydrogen acid, हाइड्रोजन रिड्यूस करेगा और यहां से OH रिड्यूस कर देगा। ये बचा आपका C2H5, तो C2H5
अब यहां बच रहा है COOCH3 and now next product OH and H also name as water. This is salt, this is water, is so it is the reaction of the neutralization reaction. Because the acetic acid, so tendency of the loses of the hydrogen, this is the ethyl alcohol, tendency of the hydroxyl group, so also react with the form of the salt like ester and produce of the water. This reaction is called the neutralization reaction. और नेक्स्ट रिएक्शंस आप अपने से कर सकते हैं, कोई भी एसिड लीजिए, HCl हम लेते हैं और किसी भी ऐसे बेस से रिएक्शन करा देते हैं, जैसे सिंपली हम अगर इसमें से कराना चाहें OH से करा दें या HCl से करा दें, H2SO4 से करा दें, KOH से करा दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप करा दीजिए और ये रिएक्शन में आप देखेंगे वाटर ऑलरेडी कंप्लीट होगा ये, क्योंकि इसमें स्केच ये Cl और K क्या बना देगा, KCl potassium chloride and H2O. This reaction is also known as neutralization reaction. When acid or base give the salt and water, this reaction is called the neutralization reaction. It is also known as the double displacement reaction because the two ion or exchange of the reactant to product form. वन रिएक्शन आप अपने से कर लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी एसिड है, H2SO4 को आप रिएक्ट करा दीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड आप सॉल्ट फॉर्म करिए। देखिए इसमें सिंपल तरीका ये है, वाटर तो आपका रिड्यूस होगा ही होगा, यहाँ पर देखिए वाटर है OH, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है इसलिए हमको ट्वाइस करना पड़ा, लास्ट में आप ट्वाइस H2O लिखेंगे, ये ट्वाइस H2O और हमारे पास आयन एक्सचेंज हो रहा है, ये पोटेशियम बचा और ये आपका सल्फेट, यानी इतना सल्फेट है और यहाँ से पोटेशियम, ये आप लिखेंगे पोटेशियम सल्फेट K2SO4। All reactions are called double displacement reaction but divided in the precipitation reaction and neutralization reaction. Precipitation reaction in all prepared of the precipitate form and neutralization reaction form salt and water. Please note this. Now next, last reaction or the types of the reaction in the sources. Number one आप कंप्लीट कर चुके हैं. Number one, combination reaction. Combination reaction are also completed for the previous lecture. And number two, decomposition reaction. Number third, simple displacement reaction. And number fourth, double displacement reaction. Also divided in the two types, precipitation reaction and neutralization reaction. Now next, fifth reaction are oxidation and reduction reaction. Oxidation and reduction reaction. This reaction is very important for the board exam. Double displacement reaction and oxidation reduction reaction is the very important, yeah, most important of the board exam. Oxidation and reduction. Oxidation and reduction reaction. This is also one type of the oxidation reaction and
Second types of the reduction reaction. But if any reaction are combined of the oxidation and reduction reaction is also known as the redox reaction. ठीक है, वैसे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग भी रिएक्शन होती हैं, बट जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यदि दोनों होता है तो उसको बोलते हैं हम रेड ऑक्स रिएक्शन। री फॉर रिडक्शन, रेड ऑक्सन, आर ई डी रिडक्शन, ओ एक्स से लिया गया ऑक्सीडेशन, शॉर्ट फॉर्म में इस रिएक्शन को बोला जाता है रेड ऑक्स रिएक्शन। पहले हम एक एक करके सीखेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द रिडक्शन। व्हेन द एनी एलिमेंट्स आर द ऐड ऑफ द ऑक्सीजन एंड रिमूव ऑफ द हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। एंड when the any elements are add of hydrogen and reduced for the oxygen, it is called the reduction. For the symbolization of the this map, for elements any elements are add of oxygen, any elements of add of oxygen and remove of hydrogen, remove of hydrogen and add of oxygen. In other words, electronegative atom are add, electropositive atom are remove, is are called oxidation. Okay, when any element add of oxygen and remove of hydrogen are add of electronegative atom and remove of electropositive atom, this is called the oxidation. ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट यदि ऑक्सीजन को ऐड करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है, वो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर उसके पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट को, जैसे सल्फर आ जाए, इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट को ऐड करेगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। नाउ जस्ट opposite, if any elements, if any elements add of hydrogen and remove of oxygen, or add of electropositive atom and remove of electronegative atom, it is called reduction. ओके स्टूडेंट, यानी जब भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन को ऐड करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा तो वो कहलाएगा रिडक्शन। अगर अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट को ऐड करेगा और निगेटिव पार्ट को रिमूव करेगा तो कहलाएगा रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे समझ लीजिए, बहुत आएगा आपको। और जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो जाते हैं तो वहां पर हो जाता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ए बी एंड एक्स वाई। अब देखिए यहां से ये बाइंड कर लेगा और आयन चेंज कर देगा। तो आयन भी चेंज कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। एक तरीका और मैं बताता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। पहले इसको नोट कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एक ये है, ये ओल्ड डिफिनीशन है और ये आपको मॉडर्न डिफिनीशन में बता रहा हूं आपको। ओल्ड डिफिनीशन भी आपको देखना है और मॉडर्न भी देखना है।
Okay, when any compounds are loses of electron, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा कोई भी पार्ट तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ओके, कोई भी हो सकता है, इसमें सोडियम हो सकता है, ये लूज करेगा वन इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Na प्लस। ठीक है, कोई भी ले लीजिए, अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Mg+2। एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इसके पास चार्ज आ जाएगा +3। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये मॉडर्न डिफिनीशन है। Oxidation in a process which atom or ion loses of the any elements or the compounds are called oxidation. Just opposite as a reduction. Reduction are also one or more electronegative atom of the add. For example, X, one electron add and charge of the negative charge. For example, chlorine is one electron add and negative charge also form. Oxygen are 2 electron add and charge of the -2. This reaction of the reduction, this reaction of the oxidation. स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से समझ दीजिए, तभी ये समझ में आएगा। ओके, क्योंकि एग्जांपल अब मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये ओल्ड डिफिनीशन है आपकी, ये मॉडर्न डिफिनीशन है। ओल्ड डिफिनीशन आर डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन डिपेंड कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड होगा ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा रिडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में। देखिए वन रिएक्शन देखिए, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। अब इसको हमको प्रूव करना है, जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, जब प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर H2O हो जाएगा और Cu हो जाएगा। अब देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ओके, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखिए इसमें कॉपर में, इस कॉपर में क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। रिमूव ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ये क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो ऑक्सीजन को रिमूव कौन करता है, देखिए ये, तो इट इज कॉल्ड द रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ओके, एंड ऐड ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ध्यान से देखिए, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, ऐड ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट में देखिए, ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट। इस रिएक्टेंट में देखिए ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल कॉपर बच रहा है। तो रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द रिडक्शन, ऐड ऑफ द ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है, इट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और बोथ रिएक्शन आर द कंप्लीटेड फॉर दिस रिएक्शन, इट इज कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, briefly or discuss of the oxidation and reduction.
or tomorrow process of the 10 o'clock